This question is from a representation of data. The times taken by 200 players to solve a computer puzzle are summarized in the following table. This table is given. This table is called distribution table in group form. Frequency distribution table in group form. These are the intervals. Frequency against each interval is given. Draw a histogram to represent this information. Total players हैं 200. Time taken is given in the interval form. So since we have to draw the histogram, सबसे पहले आपने देखना है कि if the intervals are of equal width, तो ये देख रहे हैं आप, ये इंटरवल 10 का है, इंटरवल विड्थ 10 है, इंटरवल विड्थ नेक्स्ट 10 है, यहाँ पे इंटरवल विड्थ जो है 20 है, और यहाँ पे इंटरवल विड्थ 20 है, और यहाँ पे इंटरवल विड्थ 40 है. So intervals are of not equal width, so we have to find frequency density. तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करेंगे. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला आता है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. ये देखें फ्रीक्वेंसी है 16, फर्स्ट इंटरवल की क्लास विड्थ 10 है, 16 ओवर 10 1.6. in the same way 54 over 10 5.4. So frequency density against each interval हमने find कर लिए. Now we will take frequency density along y-axis and the intervals along x-axis. On x-axis we are taking time interval, along y-axis frequency density. So we will draw the histogram. First interval 0 to 10, frequency density is 1.6. 0 to 10, frequency density is 1.6. तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना ली है. नेक्स्ट इज 10 to 20, frequency density is 5.4. 10 to 20, frequency density is 5.4. तो ये हमने दूसरी रेक्टेंगल बना ली है. In the same way, third 20 to 40, frequency density is 3.9. Frequency 20 to 40, frequency density 3.9. So next rectangle. In the same way 40 to 60, वो हमारे पास 1.6 है. Last पे 60 to 100, frequency density is 0.5. So 60 to 80, frequency density is 0.5. ये हमारी हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा हो गई है. Next part of this question is calculate an estimate of the mean time taken by 200 players. अब हमने मीन टाइम कैलकुलेट एंड एस्टिमेट. कैलकुलेट का वर्ड भी आ गया है और एस्टिमेट का वर्ड भी है. ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे हमने वो फार्मूला यूज़ करना है मीन का. तो यहाँ टी हमें रिक्वायर्ड है, तो टी तो गिवन है इंटरवल फॉर्म में, तो टी 0 से 10 तक वेरी करता है. यहाँ पे 10 to 20. तो व्हेन द इंटरवल्स are given, we will take the mid values against mid value of each interval. जिस तरह ये है 0 to 10, 0 plus 10 over 2. इसी तरह यहाँ पे 10 plus 20 over 2. we will find the mid value of each interval. तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है. mid value of t is time, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इंटरवल का मिड जो है ये देखें
First 0 plus 10 over 2, that is 5. 10 to 20, mid is 15. 20 to 40, mid is 30. And 50 and 80. तो हमने इसको इस टेबल फॉर्म में लिख लिया है. These are the values of t. These are the frequencies against each value of t. So we have to find mean value of t. We will use this formula. T बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को. फार्मूला विल बी समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ. ये हमारे पास एफ है और ये टी की वैल्यूज हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास सिग्मा एफ टी आ जाएगा. तो समेशन एफ जो है वो हमें गिवन है. 200 प्लेयर हैं, तो समेशन एफ जो है वो 200 है. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो टी बार हमारे पास आएगा 5 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 54 प्लस 30 इंटू 78 प्लस 50 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 20 divided by 200. So finally we get mean value of t will be 32 32.2 correct to 3 significant figures. And next is find the greatest possible value of interquarter range of these times. Greatest possible value of interquarter range of these times. Interquarter range होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. तो अब हमने व्हेन द इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन इन इंटरवल फॉर्म, तो फिर हमने लोअर क्वार्टाइल देखना है किस इंटरवल में लाई करता है. लोअर क्वार्टाइल किस इंटरवल में लाई करता है और अपर क्वार्टाइल किस इंटरवल में लाई करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है. तो लोअर क्वार्टाइल होता है 1/4 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 25% थ्रू द डेटा इज द लोअर क्वार्टाइल. तो सो फॉर लोअर क्वार्टाइल फॉर Q1 is lower quartile. 1/4 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी. ये हमारे पास 200 प्लेयर्स हैं. टोटल फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 200. तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 50. Q1 is 50. अब हमने देखना है ये 50 कहाँ पे अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम देखेंगे. इन फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे. 50 देखना है हमने कहाँ पे लाई करता है. 16 में 54 ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 जो है वो इस इंटरवल में लाई कर जाएगा. 10 to 20 वाले इंटरवल में 50 जो है वो लाई कर जाएगा. इसका मतलब है कि लोअर क्वार्टाइल वी विल फाइंड लोअर क्वार्टाइल इन दिस इंटरवल 10 to 20. सो lower quartile lies in this interval 0 to 10 to in this interval 10 to 20
In the same way, for Q3, that is upper quartile होती है 75% थ्रू द डाटा 3/4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 75% को कहते हैं तो दिस बिकम्स 150। अब हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे 150 कहाँ पे लाई करता है ये देखें आप 150 जो है दैट विल लाई इन दिस इंटरवल 16 प्लस 54 प्लस 78 प्लस 32 ऐड करेंगे तो 150 वैल्यू हमारी 40 to 60 वाले इंटरवल में फाइंड होगी। तो सो हम अपर क्वार्टाइल फाइंड कर हमें अपर क्वार्टाइल जो है Q3 वो हमें मिलेगी इस इंटरवल में 40 to 60 40 to 60 इसको इधर लिखते हैं। लोअर क्वार्टाइल हमें Q1 जो है वो हमें मिलेगी इस इंटरवल में और अपर क्वार्टाइल जो है वो हमें इस इंटरवल में मिलेगी 40 to 60। अब हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टर रेंज। इंटर क्वार्टर रेंज होती है अपर माइनस लोअर। अब इंटरवल फॉर्म में दिया है हमने यहाँ से 10 और 20 के दरमियान कोई वैल्यू लेनी है, इधर से 40 और 60 के दरमियान में वैल्यू लेनी है तो फाइंड क्या करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टर रेंज। तो सो हम इंटर क्वार्टर रेंज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टर रेंज आएगी इंटर क्वार्टर रेंज ग्रेटेस्ट अपर क्वार्टाइल में से हम 60 ले लेंगे 60 में से ये 10 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो 50 इज द इंटर क्वार्टर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटर क्वार्टर रेंज। we will subtract 60 minus we will subtract 10 from 60 तो ये आ जाएगा 60 minus 10 that is 50। this is the greatest possible value of interquarter range। next question number 6। question number 6 in Questa 60% of the adults travel to work by car। 60% लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं कार पे। A random sample of 12 adults from Questa is taken। Find the probability that the number who travel to work by car is less than 10। So this question is of binomial distribution because number of fixed trials are given, that is 12। This is the number of fixed number of trials are given, 12 is n। Find the probability that the number who travel to work by car is less than 10। So travel by car, the probability of that is given 60%। So we have P, probability of success is 0.6। 60% को हम 0.6 लिख सकते हैं। Probability of success is 0.6 or Q will be 0.4। We have n fixed number of trials, that is 12
अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ number probability that the number who travel to work by car is less than 10. We have to find the probability of x is less than probability of x is less than 10 फाइंड करना है। बाइनोमियल का फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r n सी r q पावर n माइनस r p पावर r। अब देखिए लेस देन 10 आउट ऑफ 12 लेस देन 10 वैल्यूज आती है 12 सी 9 12 सी 0 टू 12 सी 9 तक आती है, लेकिन हम ये कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, इसको हम एक और तरीके से कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसको 1 में से मिसिंग वैल्यूज जो है वो माइनस कर देंगे। ये देखिए ये 12 है, यहाँ पे 10 है, मिसिंग वैल्यूज क्यों कौन कौन सी है 10 11 और 12, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और यूजिंग दिस फार्मूला वी गेट द आंसर। तो सो वी विल डू इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 10 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 10 1 माइनस 12 सी 0 क्यू पावर n माइनस आर पी पावर सॉरी ये मिसिंग वैल्यूज आर 10 11 12 12 सी 10 क्यू पावर n माइनस आर पी पावर आर प्लस 12 सी 11 0.4 पावर 1 0.6 पावर 11 प्लस 12 सी 12 0.4 पावर 0 0.6 पावर 12। Now we will use our calculator to find these values. यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे और 3 ऑप्शंस हैं, ये कैलकुलेट करके इनका आंसर आ जाता है 1 माइनस 1 माइनस इसका आंसर है कैलकुलेटर से, ये हमारे पास आएगा 0.08343। Finally we get the answer is 0.917, correct to 3 significant figures. Now next part of this question is a random sample of 150 adults from Cuesta is taken. No number of observations are exceeded. 150 adults from Cuesta is taken. Use an approximation to find the probability that the number who travel to work by car is less than 81। यहाँ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, तो हमने हमारे पास n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 150 है, n इज 150 we have to find the probability x is less than 81।
we have to find probability of x is less than 81। यहाँ पे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में हम कंटिन्यूटी करेक्शन करते हैं, तो कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे 81 की, तो वो हमारे पास आएगा, हम लेंगे इसका लोअर बाउंड, तो 0.5 माइनस कर देंगे। तो पहले हमने ये इसी इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। 0.5 क्या है, वो एब्सोल्यूट एरर होती है, तो वो 81 में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0.5, लोअर बाउंड लेंगे, इस वैल्यू का लोअर बाउंड 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आफ्टर कंटिन्यूटी करेक्शन इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्मॉलर देन 80.5। नाउ वी विल कन्वर्ट x into z by this formula, by this relation x minus mu over sigma। यहाँ पे z होता है नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो इसको हम लिखेंगे probability of z is less than x minus mu over सिग्मा। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में ये म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो हम बाइनोमियल से लेंगे, बाइनोमियल से, क्योंकि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। z इज लेस देन 80.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब हमने म्यू और सिग्मा फाइंड करने हैं। म्यू होता है एन, म्यू हमारे पास आएगा, म्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू होता है n इंटू पी। तो n is given 150 and p is also given, that is 0.6, so we get mu is equal to 90। in the same way हम सिग्मा फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर will be np into q, sigma square will be 150 into 0.6 into 0.4। after calculating and taking square root we get sigma is equal to 6। So we will put the value of mu and sigma here. So we get this probability of z is less than 80.5 minus mu, mu is 90 over sigma is 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा z is less than, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा -1.583। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, तो z नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो लेस देन का साइन जो है ये यहाँ पे ग्रेटर का आ जाएगा। तो सो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.583। तो अब यहाँ पे साइन ग्रेटर का आ गया, तो इसको हमने लेस बनाना होता है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus probability of z is smaller than 1.583। अब इसको 5 की फॉर्म में लिख लें, 5 shows the probability। जब लेस का साइन आएगा तो इसको 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो सो इट becomes 1 minus 5, 5 shows the probability, this notation is called 5, 5 shows the probability 1.583, दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो सो हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे, तो वी गेट 0.9433। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट
0.0567. Correct to three significant figures. This is the answer. Now, next part of this question is justify the use of your approximation in part B. तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की जस्टिफिकेशन क्या होती है? वो जस्टिफिकेशन उसकी कब हमने कंटिन्यूटी करेक्शन करनी है और कब नहीं करनी। तो यही इसकी जस्टिफिकेशन है कि हम प्रोडक्ट लेंगे पहले एन और पी का। एन पी मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एंड एन क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 5। अब हम चेक करते हैं कि एन पी और एन क्यू जो है वो क्या है। इन द क्वेश्चन एन पी जो है यहाँ पे देखिए ये एन पी इज ग्रेटर देन 5। एन हमारे पास है 150। तो सो दिस शोज दैट 150 इंटू पी इज 0.9। तो दिस बिकम्स 90 और क्लियरली 90 इज ग्रेटर देन 5। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो 90 इज ग्रेटर देन 5 क्लियरली। तो नो नेक्स्ट इज इसको भी चेक करते हैं। एन क्यू एन इज 150 and Q is Q is 0.4। this becomes 60 or clearly 60 is greater than 5।